As a singer, you have to bring the soul to the song. These were the words, thoughts, and beliefs of a legend, Bharat Ratna Srimati Lata Mangeshkar ji, about whom, no matter how many sentences we pen down, they would never suffice the impact, the personality, and more importantly, the force to reckon with she was. Lata Mangeshkar ji was a striking personality who, in her career spanning for a notable 7 decades, gained many sobriquets, including that of Queen of Melody, Swar Kokila, Nightingale of India, etc. She was considered to be one of the most powerful voices of Indian music, singing more than 50,000 songs in her lifetime in over 36 Indian languages and a few foreign languages. Lata Mangeshkar ji began her musical journey at a young age due to her immense affinity with music. She innately had a penchant for music and believed that music was within her, or rather, she was full of it. Her admiration for music was instilled by her father, Sri Dinanath Mangeshkar ji, a multifaceted musician. Revered globally, she was profusely loved, admired, and looked up to as a beacon of inspiration by a multitude of playback singers who have learned, trained, rehearsed, and even worshipped her to get an ounce of singing abilities that she possessed. While Bollywood was entering its golden age, Lata Mangeshkar ji performed in several memorable and popular songs in many films. Apart from that, one of the most famous contributions is the song "Ae Mere Watan Ke Logo," which was a soulful tribute to Indian soldiers who sacrificed their lives in the war against China in 1962 and left everyone emotional. Fondly remembered as Lata Didi, her voice was known to give new hope to the bored mind, enliven the memories of the beloved, and sometimes made devotees realize the charming and auspicious form of God. She was truly gifted by Goddess Saraswati and respected the art form of singing, thereby keeping it in high regard. A very memorable incident comes to mind when remembering Lata Mangeshkar ji. In the Marathi Sahitya Sammelan of 1989, veterans from every field were present on the stage. The luminaries also consisted of legendary writer Purushottam Lakshman Deshpande ji. At this congregation, Deshpande ji's speech was what captures the abundance and resolution in Lata Mangeshkar ji's voice. Purushottam ji stated, "If someone asks me, is there a God in the universe? My response would be, I don't know if there is a God, but in the sky there is sun, there is moon, and there is Lata's voice." At this statement, there was a thunderous applause echoing in the halls. He continued, "There is no such time as day or night when there would ever be a moment that Lata's voice is going anywhere in this world." In 1989, the Dada Sahib Phalke Award was bestowed on her by the Government of India. She was awarded the Bharat Ratna, India's highest civilian honor, in 2001. France conferred on her its highest civilian award, Officer of the National Order of the Legion of Honor, in 2007. She was the recipient of 3 National Film Awards, 15 Bengal Film Journalists Association Awards, 4 Filmfare Best Female Playback Awards, 2 Filmfare Special Awards, the Filmfare Lifetime Achievement Award, and many more. In 1974, she became the first Indian to perform at Royal Albert Hall, London. For Lata Mangeshkar ji, awards were a token of respect that people were giving her. So, no matter how many awards she was receiving, she always felt emotional. Everyone who knew her and worked with her often spoke about her modesty. Such was her humility and respect towards her profession, or rather towards her love for music. Such was her greatness. The nation has lost and mourns the demise of a true gem. However, she will never be forgotten. Her songs have, are, and will keep on touching many more lives. She will always be remembered as the Nightingale of India.
हिंदुस्तान की सबसे मशहूर आवाज भारत रत्न लता मंगेशकर, जिन्हें हम प्यार से लता दीदी कहते हैं। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। जन्म 28 सितंबर सन 1929 में हुआ। इनके पिता स्वर्गीय दीनानाथ मंगेशकर खुद एक जानी मानी हस्ती थे। नाटक हो या संगीत, दोनों में ही इन्होंने अपना एक अलग मकाम बना रखा था। ये किस्सा मशहूर रहा कि शुरू में लता मंगेशकर को संगीत नहीं सिखाया जा रहा था और इनके बाबा दीनानाथ मंगेशकर जी के बहुत से शिष्य थे। एक मर्तबा हुआ यूं कि उनका एक शिष्य गलत गाना गा रहा था। अपने बाबा की गैर हाजिरी में नन्ही लता ने उस बच्चे को ठीक करना शुरू कर दिया और बताया कि ये राग ऐसे नहीं, ऐसे गाया जाता है। वो नन्ही सी बच्ची इस बात से बेखबर थी कि पीछे उसके पिता खड़े हैं। दीनानाथ मंगेशकर जी ने लता जी की आई से कहा कि अरे, मैं तो बाहर के बच्चों को सिखा रहा हूँ, मुझे यह ख्याल ही नहीं था कि एक गवैया तो हमारे घर में भी है। और उस दिन से घर में ही लता जी की संगीत की शिक्षा शुरू हुई। बचपन से ही लता मंगेशकर और उनकी तीनों छोटी बहनें मीना, आशा और उषा और छोटे भाई हृदय नाथ ने घर में संगीत और सुरों का माहौल देखा था। इसी का प्रभाव था कि घर की सबसे बड़ी बेटी लता मंगेशकर का संगीत की ओर झुकाव खुद ब खुद होता चला गया। धीरे धीरे पिता से लता ने शास्त्रीय संगीत के साथ साथ उस वक्त के मशहूर फिल्मी गीत बारीकी से सीख लिए। छोटी उम्र से ही लता पिता के संगीत नाटकों में उनके साथ गाने लगी, साथ में अभिनय भी करने लगी। 1941 में पूरा परिवार सांगली से पूना आकर रहने लगा। धीरे धीरे पिता दीनानाथ ने बेटी को संगीत विद्या के साथ साथ जीवन की कई सीख दी। सुधामती, अब मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है कि मेरे बाद मेरे परिवार की क्या दशा होगी। मेरे बाद लता तुम सबकी देखभाल करेगी। शायद अपने प्यारे बाबा की ये बात लता को मालूम थी, इसीलिए अपने प्यारे बाबा के इस दुनिया से चले जाने के बाद बेहिचक लता मंगेशकर ने परिवार की जिम्मेदारी अपने नाजुक कंधों पर उठाने का फैसला कर लिया। जब पिताजी की डेथ हुई तब नेचुरली मुझे फिल्मों में आना पड़ा, पर फिल्मों में मैं इतनी छोटी थी कि मुझे कोई प्लेबैक तो मिलने का कोई चांस नहीं था। तो यही एक रास्ता था कि मुझे काम करना पड़ा। लता मंगेशकर तब के बम्बई शहर आई और फिर हमेशा के लिए यहीं की हो गई। लेकिन बम्बई शहर में लता मंगेशकर को बहुत संघर्ष करना पड़ा। बम्बई में वो संघर्ष का दौर था। लता मंगेशकर को मास्टर विनायक का सहारा था। वो लता से अपनी फिल्मों में काम तो करवा रहे थे, लेकिन वो जानते थे कि लता के अंदर एक बहुत ही प्रतिभाशाली गायिका है जिसे निखारना चाहिए। नूरजहां जी के मतलब सेट पे बैठी हुई थी, तो जो प्रोड्यूसर थे, जो मालिक थे उनके, उन्होंने कहा कि लता इधर आओ जरा। तो उन्होंने कहा कि ये लता हमारे यहाँ काम करती है और गाती है बहुत अच्छा। मैं 14 साल की थी, 14-15 साल। तो उन्होंने कहा सुनाओ बेटा। तो मैं वहाँ बैठ गई और मैंने उनको कुछ क्लासिकल सुनाया, क्योंकि मैं उस वक्त क्लासिकल ही गाती थी ज़्यादा। तो फिर कहने लगी अच्छा कोई फिल्म का गाना सुनाओ। तो मैंने कोई फिल्म का गाना सुनाया। तो कहने लगी तुम बहुत अच्छा गाती हो बेटा, पर कोशिश करो कि क्लासिकल सीखो और क्लासिकल का रियाज करो, रियाज करना जरूरी है। दूसरी तरफ परिवार चलाने की मजबूरी में लता मंगेशकर कुछ फिल्मों में काम करती रहीं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें प्लेबैक सिंगर के तौर पर गाने के मौके मिलने लगे। लता मंगेशकर को एक्टिंग में ज्यादा रुचि थी ही नहीं, सो जैसे ही उन्हें गाने का काम ठीक ठाक मिलने लगा तो उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद कहा और 1947 में एक्टिंग को अलविदा कह दिया। फिल्मों में मैंने काम किया, पर वो ऐसे ही मतलब हीरो की बहन या हीरोइन की बहन। मुझे वो मेकअप करना और सेट पे जाना और कभी रोना और कभी हंसना तो मुझे कभी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मेरा मन सबसे ज्यादा अच्छा मतलब दिल में होता था कि गाना गाओ। लता मंगेशकर जब थोड़ा बहुत कमाने लगी
तो उन्होंने कुछ पैसे जोड़े और बड़े शौक से एक रेडियो खरीदा। जिस दिन वो रेडियो खरीद कर वो घर ले आई, घर पे रेडियो सेट किया गया, ऑन किया गया, तो उसी पहले दिन पहली बार रेडियो से आप जानते हैं क्या खबर आई? खबर ये आई कि अब के.एल. सहगल नहीं रहे। बहुत उनको सदमा हुआ, दुख हुआ। लता मंगेशकर को गाने के ऑफर्स आने लगे, उनकी पहचान फिल्म इंडस्ट्री में बनने लगी। इसी दौरान एक बार उन्हें उस वक्त के मशहूर हीरो यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार साहब की एक फिल्म में गाने के लिए बुलाया गया। जब लता मंगेशकर से उनकी मुलाकात करवाई गई तो दिलीप कुमार ने उन्हें कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर लता मंगेशकर को बहुत बुरा लगा। वो उस वक्त के मशहूर संगीतकार अनिल बिस्वास के सहायक मोहम्मद शफी के पास गईं। तो मैं इतनी उस वक्त मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कमाल है, ये मुझे ऐसा कह रहे हैं। तो मैं जब घर गई वापस तो पहला काम मैंने ये किया, उस वक्त मेरी पहचान थी शफी जो म्यूज़िक डायरेक्टर भी थे। अच्छा। मोहम्मद शफी। हाँ, तो उनको मैंने कहा कि आप कुछ कीजिए और मुझे उर्दू सीखनी। ये लता मंगेशकर की खासियत है कि वो हर नई सीख को चुनौती की तरह लेती हैं। उन्हें भले ही उस वक्त दिलीप कुमार की बात बुरी लगी हो, लेकिन आज वो उनकी शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उन्हीं की कही बात की वजह से लता मंगेशकर उर्दू के शब्द सही तलफ्फुज के साथ बोलती और गाती हैं। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर बतौर संगीतकार भी काम कर चुकी हैं। जी, इनके ऊपर खासा दबाव था कि लता मंगेशकर को भी म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहिए, पर लता जी म्यूजिक डायरेक्टर बनके दूसरे संगीतकारों के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ना चाहती थीं। इसलिए इन्होंने अपने शुभचिंतकों की जिद पर नाम बदला और संगीत दिया। मराठी फिल्म थी राम राम पाहुना और बतौर संगीतकार लता जी ने अपना नाम रखा था आनंद घन। और ये राज भी तब खुला जब एक अवार्ड फंक्शन में बार बार आनंद घन को मंच पर बुलाया जा रहा था और वो वहां पर मौजूद होते हुए भी स्टेज पर नहीं चढ़ रहा था। जाहिर सी बात है, लता मंगेशकर कैसे जाहिर करती कि वही लता हैं और वही आनंद घन भी, पर लता जी को मंच पे जाना ही पड़ा और इस तरह से ये राज खुला। ये बात भी आगे जाकर पता चली कि 60 के दशक में जब लता मंगेशकर एक अलग मकाम हासिल कर चुकी थीं, तब इनकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। मौत के मुंह से इन्हें बाहर निकाला गया था और डॉक्टर ने इन्हें बोला था कोई आपको धीमा जहर दे रहा था, और वो डॉक्टर सही था। इनका एक रसोइया इन्हें हर रोज धीमा जहर दिया करता था, जिसकी वजह से लता जी की जान भी जा सकती थी। पर इनके बीमार पड़ते ही वो रसोइया भाग गया। लता मंगेशकर ने एक से बढ़कर एक संगीतकार के साथ काम किया, चाहे वो मास्टर गुलाम हैदर रहे या फिर नौशाद साहब, शंकर जयकिशन की जोड़ी रही या मदन मोहन साहब, मुख्तलिफ संगीत के मालिक सलील चौधरी रहे या फिर रोशन साहब। बदलती पीढ़ी में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आर.डी. बर्मन और कल्याण जी आनंद जी के साथ भी इन्होंने खूब गाने गाए। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में हो गया है, जहां उनका इलाज चल रहा था। Yeah, it is a big loss for us. In fact, Prime Minister Narendra Modi has tweeted and he says, I am anguished beyond words. The kind and caring Lata Didi has left us. Now this is Prime Minister Modi's tweet that I am here reading out. He also goes on to say that she leaves a void in our nation that cannot be filled. The coming generations will remember her as a stalwart of Indian culture, whose melodious voice had an unparalleled ability to mesmerize people. Now this is of course Prime Minister Narendra Modi talking about Lata Mangeshkar.
मोगरा फुलला, मोगरा फुलला. ऋणू झुणू रे भ्रमरा, सांडी तू अवगुणू रे भ्रमरा. ऋणू झुणू रे भ्रमरा, सांडी तू अवगुणू रे भ्रमरा. ऋणू झुणू रे भ्रमरा, सांडी तू अवगुणू रे भ्रमरा. विसरू नको श्रीरामा मला, विसरू नको श्रीरामा मला. मी तुझ्या पाऊली जीव वाहिला, प्रिया विसरू नको श्रीरामा मला, विसरू नको. चल ये रे गड्या, नाचून घालू फुगड्या. चल ये रे गड्या, नाचून घालू फुगड्या. खेळू झिम्मा झिंपुरी 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 झिम. चाफा बोले ना, चाफा चाले ना, चाफा खंत करी काही केल्या फुले ना. चाफा बोले ना. ते विरून जाते कंपने वाऱ्यावरी, हृदयावरी सुरती विरून जाते. मी मगतीने परत मातृभूमीला, सागरा प्राण तळमळला, तळमळला सागरा. मी मगतीने परत मातृभूमीला, सागरा प्राण तळमळला, तळमळला सागरा. आगा करुणा करा, करीतसे धावा. करुणा करा, आगा करुणा करा. या मज सोडवा लव करी, करुणा करा. कमोदिनी काय जाणे तो परिमळ, कमोदिनी काय जाणे तो परिमळ. भ्रमर सकळ भोगीतसे, कमोदिनी काय जाणे तो परिमळ. जयोस्तु ते श्री महन्मण्डले, शिवास्पदे शुभदे. स्वतन्त्रते भगवति त्वामहं यशोयुतां वन्दे, यशोयुतां वन्दे. जयोस्तु ते श्री महन्मण्डले, शिवास्पदे शुभदे. स्वतन्त्रते भगवति त्वामहं यशोयुतां वन्दे, यशोयुतां वन्दे. येणे सुखे रुचे एकांताचा वास, येणे सुखे रुचे एकांताचा
वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे अखेरचा तुला दंडवत सोडून जाते गा दरी दरीतून मावळ देवा दरी दरीतून मावळ देवा देऊळ सोडून धावरे अखेरचा तुला दंडवत तुला दंडवत जेथे ज्योती तेथे लक्ष्मी उभी जगाच्या सेवा धर्मी दिशा दिशातून या लक्ष्मीच्या दिसती पाऊल खुणा दिसती पाऊल खुणा शुभं करोति म्हणा मुलानो शुभं करोति म्हणा खेळ मांडियेला वाळवंटी घाई खेळ मांडियेला वाळवंटी घाई नाचती वैष्णव भाई रे नाचती वैष्णव भाई रे क्रोधाभिमान केला पावटणी क्रोधाभिमान केला पावटणी एक एका लागतील पायी रे एक एका लागतील पायी रे खेळ मांडियेला वाळवंटी घाई खेळ मांडियेला वाळवंटी घाई नाचती वैष्णव भाई रे नाचती वैष्णव भाई रे निरध्वनी हे मूक गान हे यास म्हणो कोणी निरध्वनी हे मूक गान हे यास म्हणो कोणी नभात हे साठवले याने दुमदुमली अवनी सर्व धर्म हे भेद पंथ हे सर्व एक झाले माझे माझे विश्वतार ही प्रेमाची बोले माझे गाणे आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे तोषोनी मज द्यावे पसाय दान हे जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे आता विसाव्याचे क्षण माझे सोनियाचे मणी सुखे